السلام علیکم ناظرین، 4 TV کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اقتدار کے دو مراکز فائدہ مند نہیں ہو سکتے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی پریس کانفرنس۔ کہا مرکز سے پر امید ہیں، جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو کیا جائے گا جلد بحال۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے دہلی میں آغا روح اللہ ہوئے سرگرم۔ کہا مجوزہ احتجاج میں حصہ لینے ہیں تیار، کم از کم 100 اراکین پارلیمان سے لی جائے گی تائید۔ سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کے لیے اراضی کی نشاندہی عمر عبداللہ حکومت کے زیر نگرانی عمل میں آ رہی ہے۔ پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ کا الزام، وزیر اعلیٰ کے دعووں کو کیا چیلنج۔ عمر عبداللہ نے بجلی، راشن، تعطیلات اور دیگر تمام وعدوں سے کیا انحراف۔ الطاف ٹھاکر نے کہا وزیر اعلیٰ نے دی گئی ضمانتوں پر یو ٹرن لے لیا۔ مہنگی کتابوں کے فروخت کرنے والوں کے خلاف ہوگی کارروائی۔ شکایات پر خانگی اسکول انتظامیہ کو وزیر تعلیم نے کیا خبردار۔ کولگام میں ایک برس کے دوران 50 لاکھ مالیت کی منشیات کی گئیں ضبط، 155 افراد گرفتار۔ ضلع پولیس نے جاری کیا سال 2024 کا رپورٹ کارڈ۔ تنگ مرگ میں پیش آیا المناک قاطع زدگی کا واقعہ، 2 کم سن بھائی بہن ہوئے جاں بحق۔ بھدرواہ کی ایک ہوٹل سے مشتبہ حالت میں پائی گئی 3 لاشیں، پولیس نے کیا تحقیقات کا آغاز۔ اور وادی کے بیشتر حصوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تازہ برف باری کے ہیں آثار، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں بجلی کے میٹرز رکھنے والوں کو 200 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر کے SKICC میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ NC کے انتخابی منشور میں 200 یونٹ بجلی کی مفت سربراہی کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی تکمیل کی جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ جب تک تمام گھروں میں بجلی کے میٹرز نصب نہیں ہو جاتے۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اقتدار کے 2 مراکز کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی عدم بحالی کو غیر سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہر مقام پر یہی نظام ہوتا۔ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی جلد بحالی کے لیے اپنی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ مرکز نے جو بھی ہم سے وعدے کیے ہیں اس کو بہت جلد پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن گھروں میں بجلی کے میٹرز نصب ہیں انہیں 200 یونٹ مفت بجلی دی جائے گی۔ تھوڑا وقت لگا سمجھنے میں کہ یہ جو نیا ایک سلسلہ ہے جموں کشمیر کا، UT کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا، یہ چلتا کیسے ہے۔ ہم سب جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری حکومت میں رول رہا ہے، لیکن اس حکومت اور اس حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری کہاں پہ شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، راج بھون کی ذمہ داری کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں وقت لگا، تھوڑا ایڈجسٹ کرنے میں۔ اور عام طور پہ اگر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہوگا
समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दिल्ली में सरगर्म हो चुके हैं। आगा रूहुल्लाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक ट्वीट में ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दिल्ली में मुजव्वज़ा एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेंगे ताकि कम से कम 100 अरकान पार्लिमान से उनकी तायद हासिल की जा सके। आगा रूहुल्लाह ने लिखा है कि वो दिल्ली में मुजव्वज़ा एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि 2019 से ही उनका मौक़िफ़ साफ और वाज़ेह रहा है। इन्होंने कहा है कि वो अवाम से हमेशा ये कहते रहे हैं कि दफ़ा 370 की बहाली और अपनी शिनाख्त के लिए हमें अपनी जमहूरी लड़ाई लड़नी होगी। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने टाउनशिप मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सख्त तनक़ीदों का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि टाउनशिप मामले में न सिर्फ उमर अब्दुल्ला सरकार को इल्म है बल्कि अराज़ी की फराहमी के लिए वज़ीर आला की निगरानी में काम करने वाला मुतल्लक़ा महकमा इसकी निशानदेही कर रहा है। वहीदुर रहमान पर्रा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतल्लक़ा महकमा जो उमर अब्दुल्ला के ज़ेर निगरानी काम करता है वह सरगर्मी के साथ सेटेलाइट टाउनशिप मनसूबे में अराजियात की फरहमी के लिए निशानदेही कर रहा है। वहीदुर रहमान पर्रा ने वज़ीर आला को चैलेंज करते हुए कहा है कि वो इस मामले में कुछ रोशनी डालें और हक़ाइक़ बयान करें। बीजेपी ने एनसी की उमर अब्दुल्ला सरकार को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उमर अब्दुल्ला ने बिजली, राशन, तातीलात के बशमूल दीगर तमाम इंतखाबी वादों से इन्हिराफ कर लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्दमल देते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने आज मुकम्मल तौर पर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। बिजली, राशन, तातीलात के बशमूल आवाम से जितने वादे किए गए थे इन सब ज़मानतों से उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया है।
महंगी किताबों की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ मिलने वाली शिकायत का नोट लेते हुए वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने अपना सख्त रद्दअमल जारी करते हुए कहा है कि खानगी स्कूल्स में महंगी किताबों के फ़रोख्त पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SKICC में श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने तलबा के सरपरस्तों पर जोर दिया कि वो ऐसे स्कूल्स के नाम रवाना करें जो बच्चों को महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे तमाम खानगी स्कूल्स इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों और उनके सरपरस्तों को हरासा कर रहे हैं। कुलगाम में पुलिस और CAPF RPF की जानिब से फायर एंड एमरजेंसी की तहत मश्क की गई आतिज़दगी के बशमूल दीगर हादसात और नागाहानी वाक़यात से निपटने मुहिम चलाई जा रही है। कुलगाम पुलिस ने साल 2024 का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साल 2024 में पुलिस की जानिब से 50 लाख रुपए की मंशियात जब्त की गई हैं और 155 अफराद को मंशियात की तस्करी के मामलात में गिरफ्तार कर लिया गया। कुलगाम में कांग्रेस के ज़िले दफ्तर पर आज एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ताज़ियती प्रोग्राम में कांग्रेस के ज़िले सदर अब्दुल रशीद लोन के बशमूल दीगर ने शिरकत की और आंजहानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमात को खिरात पेश किया। मकसद यही था कि हमें खराज तहसीन पेश करना था मरहूम मनमोहन सिंह को, साबिक़ वज़ीर आज़म को। अजीम लीडर था हमारा वो, मतलब बेबाक बेमिसाल। उसका तो मतलब जो मैं देख रहा था उसका बचपन से आज तक, वो तो एक मसैया मेरी नज़रों में हम, इसलिए आज हमने इसीलिए यहाँ खराज तहसीन पेश किया है। हाँ, इस वजह से कि उसकी जो मेहनत, उसका जब वो वज़ीर आज़म था उस वक़्त हिंदुस्तान की पोजीशन क्या थी, जब वो वज़ीर आज़म बना 10 साल, उसके बाद वो हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है। मेरी नज़रों में अगर और 5 साल वो वज़ीर आज़म रहे तो मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान सबसे सुपर पावर होता है। और जो मंशूर कांग्रेस का वो हम इंशाल्लाह आते ही यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये नज़र हमारी है। मगर आज मुझे बड़ा दुख है मनमोहन सिंह का। मैं 2-3 बार ज़ाती तौर मिला था उसको जब वो वज़ीर आज़म था। मुझे मालूम है वो किस तरीके से आम सीधा साधा लोगों को पेश आता था। और अब मौसम की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में एक मरतबा फिर मौसम सर्द व खुश्क बना रहा। इस दौरान वादी के बेशतर हिस्सों में ताज़ा बर्फ़बारी की भी इत्तलात मौसूल हुई है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। सरहदी ज़िले कुपवाड़ा में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से होने वाली बर्फ़बारी ने इलाके को सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढक दिया है। सरहदी ज़िले के कई एक दूरदराज इलाकों में होने वाली बर्फ़बारी के बाद आम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। इस दौरान बांडीपुरा में भी ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। यहाँ मुख्तलिफ इलाक़ों से अवामी शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। अगरचे हुक्काम की जानिब से इक़दाम जारी हैं, वहीं लोगों ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा भी किया है।
ताज़ा बर्फबारी के बाद जोजिला माउंटेन पास को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी के बाद राहदारी को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है और बर्फ की सफाई का काम जारी है। लेबर डिपार्टमेंट पुंछ के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ ने आज एक बयान जारी करते हुए मजदूर पेशा अफराद को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा स्कीम से फ़ायदा हासिल करें। इन्होंने इस ज़िमन में तफसीलात बतलाईं। ऑफ लेबर है और हम लेबरर्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी लेबरर्स हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है मोस्टली उसको हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है। हाँ, कामसर रोड पे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास लेबर सराय भी है। हम फ्री ऑफ कास्ट उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो विद इन सिटी दूर दराज से मजदूर आते हैं यहाँ काम करने के लिए, उनके ठहरने के लिए फ्री ऑफ कास्ट हमने लेबर सराय रखी है। उसके लिए एटलीस्ट हमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। आपको पता है नशा मुक्त भारत हम भी चाह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आके रिजाइड ना करे जिसकी वजह से हमारी लेबर सराय के और मजदूरों को परेशानी हो। एक करेक्टर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद लेबर कार्ड वो हमें अप्रोच करें, हम उनको फ्री ऑफ कास्ट अकोमोडेशन विद इन द सिटी प्रोवाइड करेंगे। जो दूर दराज से मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं, जो मजदूर यहाँ से बाहर कहीं पंजाब में जा रहे हैं या कहीं पे सर्दियों में कहीं भी जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ भी लेबर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा चंडीगढ़ में भी ऑफिस है, जो चंडीगढ़ की तरफ लेबरर्स जा रहे हैं वो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो, किसी को चोट आ जाती है या कुछ हो जाता है। भदरवाह में मुसलसल दर्जा हरारत में कमी दर्ज की जा रही है, जिसके नतीजे में यहाँ आबशार भी बर्फ़ में तब्दील हो चुके हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह बहते हुए आबशार भी मुंजमद हो चुके हैं।
डोडा के भद्रवा की एक होटल से 3 अफराद की मुश्तबा हालत में लाशें बरामद हुई हैं। एसएसपी डोडा के मुताबिक जम्मू से 3 अफराद नया साल मनाने के लिए भद्रवा पहुंचे थे, ताहम गुज़िश्ता शब तीनों का राबिता अपने घर वालों से मुनक़ता हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान रॉयल एन नामी गेस्ट हाउस के कमरे से 3 अफराद की लाशें बरामद की गईं। महलूकीन की शनाख्त मुकेश सिंह, सनी चौधरी, आशुतोष राणा से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। म्यूनिसिपल कौंसिल कुलगाम की जानिब से बर्फबारी के दौरान किए जाने वाले बरवक्त इक़दामात पर मुकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की है कि आइंदा भी इस तरह के इंतज़ामात किए जाएंगे। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम टीम, सैनिटेशन टीम, सोन करन वोल टीम, काम करन वोल गली कोच कह रूद मन कम्प्लीट काम करन वोल या मेन रोड कुछ जाए तम तस क्लियर, तमन मज कह दिक्कत कह वत बंद, तमन मज तम कम्प्लीट। यम गली कोच यमन मज सन सैनिटेशन वर्कर सुबह 8 बजे लगन, काल 5 बजे तान थोद वथन कह लुकन हंद कह दिक्कत अस मज कह लुक गन दपन म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम कर कह हर साथ लुकन सत ताउन करने खतर। लुकन अगर कुछ जाए मुश्किलात तम त ताउन दिन पूर पे मुकम्मल पे गन वन ये कुछ जाए ये पता कह गली पता कह तमें गली हूँ अगर कह जीशूर इंसान सह कर म्यूनिसिपल काउंसिल कर ताउन तो वातो तथ गली मस्जिदन हज कोच गली कोच कुछ जाए कर हर कंस मुझ गई कामयाब इंशाअल्लाह रहमान। ब्रो कुन थो ये ख्यालात दिन लुकन कह दिक्कत वातान कह कुलगामिस पन्निस कुलगामिस में। टंगमर्ग में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 कमसिन भाई बहन जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक टंगमर्ग में रिहायशी शेड में रिवायती हीटर के धमाके के नतीजे में आग लगी, जिसकी जद में आने वाले 2 कमसिन भाई बहन जाँ बहक हो गए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इख्तिदार के 2 मराकिज़ फ़ायदेमंद नहीं हो सकते, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरकज़ से पुरुम्मीद हैं, जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को किया जाएगा जल्द बहाल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दिल्ली में आगा रूहुल्लाह हुए सरगर्म। कहा मुजव्वज़ा एहतजाज में हिस्सा लेने हैं तैयार, कम अज़ कम 100 अराकीन पार्लियामान से ली जाएगी तायीद। सेटेलाइट टाउनशिप के लिए अराजी की निशानदही उमर अब्दुल्ला हुकूमत के ज़ेर निगरानी अमल में आ रही है। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का इल्ज़ाम, वज़ीर आला के दावों को किया चैलेंज। उमर अब्दुल्ला ने बिजली, राशन, तातीलात और दीगर तमाम वादों से किया इनहराफ। अल्ताफ ठाकुर ने कहा वज़ीर आला ने दी गई जमानतों पर यू टर्न ले लिया। महंगी किताबों के फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। शिकायत पर खानगी स्कूल इंतजामिया को वज़ीर तालीम ने किया खबरदार। कुलगाम में 1 बरस के दौरान 50 लाख मालियत की मंशियात की गई जब्त, 155 अफराद गिरफ्तार। जिला पुलिस ने जारी किया साल 2024 का रिपोर्ट कार्ड। तंगमर्ग में पेश आया अलमनाक तातिज़दगी का वाक़या, 2 कमसिन भाई बहन हुए जाँ बहक। भद्रवा की एक होटल से मुश्तबा हालत में पाई गई 3 लाशें, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज।
और वादी के बेशतर हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान ताज़ा बर्फबारी के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।